In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. In today's video, we will not translate any paragraph, but we will discuss in today's video objective part of chapter number 1. That's going to be very much helpful for your final exams. I hope you will find this video very helpful and interesting one. In the very first part, we are supposed to learn about glossary in which one word with multiple meanings is given. So let's see. Here the first word is ancestor. Above इजदाद हम कह सकते हैं बाप दादा. Distant relation, somebody is descended from. आप स्लैश लगा के लिख सकते हैं यहाँ पे forefathers. One more word that we can use is predecessor. Predecessor, ancestors, forefathers. इन सब का मतलब है बाप दादा, above इजदाद. Right? The second word is destitute, muhtaj. We can say muflis. With no money or possessions. आप स्लैश के बाद राइट कर सकते हैं deprived. We can say poor. We can say with no money, a person with no money, poor, deprived. Deprived is most important one. Okay. The third word is equitable. मुंसिफाना, आदिल भी कह सकते हैं, बराबरी करने वाला, इनफैक्ट, फेयर, ऑनेस्ट, इवन हैंडेड. एक वर्ड है इवन हैंडेड. मुंसिफ, बराबरी करने वाला. The next word is firm, मजबूत, पुख्ता, definite, resolute, determined. We can say resolved. Right? मैंने क्या words बोले आप प्लीज इसको नोट करते जाएं साथ साथ. The first one is definite. It could be resolute. It could be determined. It could be resolved. The next word is fu. Fu means dushman, enemy, opponent, rival. Right? Rival, enemy, opponent. Okay. The next word is intercat. Intercat का मतलब है सिफारिश करना. Right? हिमायत करना, किसी की तरफ से दरख्वास्त करना. To speak in support of somebody, इतना भी अगर आप लिख लेते हैं that would be enough. और इसके अलावा हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं petition for. Yes, petition for. प्लीड फॉर का भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, बट पिटिशन फॉर अगर हम करें दैट वुड बी इनफ. पिटिशन फॉर. द नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नीट्यूड, अहमियत, इम्पोर्टेंस, इफेक्ट, ग्रेटनेस. वी कैन से फेम. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ, कर्जदार होना. राइट? कर्जदार होना, मकरूज होना. बी इन डेट टू. बी इन डेट टू. देखें यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स हैं. आप लोगों को बड़ी बड़ी ये स्टेटमेंट की तरह के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं. पेपर में आपको इस तरह से नहीं आएगा. मैक्सिमम जो है वो आपको 1 और 2 वर्ड का ऑप्शन आता है. ठीक है, जिसमें से आपने उसको सिलेक्ट करना होता है. द नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंज, बदला. अब देखें यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिखी हुई है. रिवेंज का मीनिंग देखें किस तरह लिखा हुआ है. समथिंग यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू. ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इंतकाम किसको कहते हैं. बट यू कैन राइट हेयर रिटेलिएशन. सिंपल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, रिटेलिएशन. रिवेंज, रिटेलिएशन. सीख, हासिल करना, टू गेट. वी कैन से टू फाइंड.
to obtain, to attain. Okay. Give the meaning of each word as used in the lesson. यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप हमें मीनिंग बताएं हर वर्ड का, मायने बताएं उर्दू में. बट इन 10th क्लास आपको ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता. आपको कहा जाएगा कि हम आपको वर्ड्स दे रहे हैं, आप इसके हमें सिनोनिम्स बताएं. मतलब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, यू आर सपोज टू क्लिक द राइट वन. द फर्स्ट वर्ड इज मॉडल, नमूना, एग्जाम्पल, पैटर्न, we can say sample, design. The second word is pity, taqwa, neki, goodness, holiness. The third word is eternal, abdi मतलब हमेशा कायम रहने वाला, दायमी भी कह सकते हैं हम. everlasting, endless. The fourth word is earned. earned का मतलब होता है कमाया, हासिल किया. won, obtained, got, attained, gained. ये वर्ड तमाम यूज़ किए जा सकते हैं earned के लिए. The next word is sermon, khutbah. We can say address, to preach, speech. The next word is revenge, badla, retaliation. The next word is commandment. commandment का मतलब होता है हुक्म, right? A divine command. commandment हुक्म, a divine command. The next word is upheld, मुनक्किद किया, मुनक्किद करना एक्चुअली. upheld मुनक्किद करना या बरकरार रखा. maintained, supported. The next word is destitute. हमने पहले भी पढ़ा ये ऊपर. मुफलिस, मुहताज. We can say poor, right? We can say deprived. The next word is proclaimed, बाज़ाब्ता ऐलान करना. announced, declared, announced, declared. And the last word is transcends, अबूर कर जाना, पार कर जाना. surpass, surpass, surpass. excel, rise above, but surpass is most accurate, right? Coming to word exercise B, choose the appropriate synonyms of the following words. ये words हैं इनके आपने synonyms find out करने हैं. Number 1 is equitable. equitable का मतलब होता है स्टूडेंट्स बराबरी करने वाला, मुनसिफ इंसान. fair, मुनसिफ. just, आदिल. equal, बराबर. right option is fair and just. A option and B option is the right one. Actually there should be one more option with the name option D, but यहाँ पे available नहीं है option D, so you can choose the first one or the second one. Both are correct, right? Second word is ancestor, abao ijtihad, baap dada. Antecedent, second option is forefather. थर्ड ऑप्शन इज प्रीडेसेसर. ओके, एंसेस्टर का मतलब क्या है? बाप दादा, राइट. और अगर हम देखते हैं इसके ऑप्शंस पे, तो फोर फादर्स भी बाप दादा को बोलते हैं एंड प्रीडेसेसर का मतलब है अबाउ इजदाद. सो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट वन, राइट? यू कैन चूज एनी ऑफ द वन, बी एंड सी. Third word is fu, दुश्मन. The first option is relative, रिश्तेदार. Second option is enemy, दुश्मन.
and third is friend, dost. Right option is B, enemy. Fourth word is firm, mazboot. A option is expensive, महंगा. B is powerful, ताकतवर. And C is persistent, साबित कदम, मजबूत. So the right option is C, persistent, firm, persistent. The last word is glorious, शानदार. Lustrous, चमकता धमकता, शानदार. Splendid, outstanding, जबरदस्त, शानदार. And fabulous, सेम मीनिंग है. चार वर्ड है हमारे पास, ग्लोरियस, लस्ट्रस, स्प्लेंडेड, फैबुलस. इन चारों का एक ही मतलब है, शानदार. राइट तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं. बट स्टूडेंट्स देखें, पेपर में आपको इस तरह से नहीं आएगा. पेपर में आपके पास जस्ट वन राइट ऑप्शन विल बी अवेलेबल और जो दो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होंगे. और अगर तीनों करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं देन आपके पास एक फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसमें ये लिखा जाएगा ऑल. सो यू विल चूज द लास्ट वन, डी ऑप्शन. राइट. Coming to word exercise C, give meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. आपसे कह रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, अफ़ाल हैं. इनको आपने इनके हमें मीनिंग्स बताने हैं और उन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है इन सेंटेंसेस. ऑल्दो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है. मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो वर्ड सेंटेंसेस हैं वो नहीं आते हैं, बट आपकी बुक में है तो हम इसको पढ़ लेते हैं जी. फर्स्ट वर्ड इज गिल्टी ऑफ, मुजरिम. द ज्यूरी फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट. ज्यूरी ने उसे चोरी का मुजरिम ठहराया. सेकेंड वर्ड इज बिलोंग टू, ताल्लुक होना. ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, वो अच्छे शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता है. थर्ड वर्ड इज एक्सचेंज फॉर, बदले में. ही टुक माई ओल्ड कार इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू बाइक. उसने एक नई बाइक के बदले में मेरी पुरानी कार ले ली. राइट उसने एक नई बाइक के बदले में मतलब मुझे नई बाइक दे दी और मुझसे पुरानी गाड़ी ले ली. इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक. ही डिसाइडेड द मैटर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. उसने मामले का फैसला कानून के मुताबिक किया. ठीक हो गया. This is all about exercise C. Coming to word reading comprehension of chapter number 1. Exercise A. Choose the correct option. In paragraph 1, dash details of Rasul sallallahu alaihi wasallam characteristics are given. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों की डिटेल्स दी गई है. किस तरह से? ए ऑप्शन जनरल, बी ऑप्शन स्पेसिफिक, सी ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल. तो डेफिनेटली हमें जनरली क्वालिटीज़ बताई गई हैं, करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली बताए गए हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जनरली बताए गए हैं. स्पेसिफिक या क्रोनोलॉजिकली उनको डिस्कस नहीं किया गया. सो ए ऑप्शन इज़ द राइट वन. सेकेंड, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़ दैट Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a great orator. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of state. And C option is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his nabuwat. जी बिल्कुल, C option is the right one. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his nabuwat. C option is the right one. Third one, examples given in paragraph 3 and 4 show that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just head of state of Medina. B option, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a simple man. C option, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was fair in his dealings. C option is the right one because जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी ख़ास तौर पर पैराग्राफ 3 और 4 में, उनसे हमें यही पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair in his dealings. Fourth one,
Paragraph 5 shows that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of state. B option. The justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims. कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसाफ था वो कुफार के लिए भी सिक्योरिटी और अमन का बाइस था. एंड थर्ड ऑप्शन इज Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his nabuwat. The B option is correct one. बिकॉज पैराग्राफ 5 में यही हमें बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतने मुनसिफ थे कि कुफार भी कायल थे इस बात के और वो अपने मामलात जो है वो इंसाफ के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे. सो बी ऑप्शन इज़ द राइट वन. The justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for the non-Muslims. Fifth one, to whom very important. To whom did Rasul sallallahu alaihi wasallam give the following advice? Rasul sallallahu alaihi wasallam ने ये नसीहत किसको की? When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely then you will know the truth. एक क्वेश्चन भी है ये और इसके अलावा हमने इसको ट्रांसलेट भी किया चैप्टर में. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत किसको फरमाई? जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए, दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फ़ैसला कभी मत करो. इस तरह ज़्यादा इम्कान है कि आप सच जान जाएंगे. ए ऑप्शन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. नो. बी ऑप्शन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. सी ऑप्शन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. बिल्कुल हमने पढ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एडवाइस की थी. बी ऑप्शन इज़ द राइट वन. कमिंग टुवर्ड ग्रामेटिकल पार्ट of chapter number 1, here two definitions are given. The first one is concrete noun and second one is abstract noun. Actually these are the kinds of noun. हम पहले abstract noun को डिस्कस करते हैं. abstract क्या होता है? We can say name of the things to whom we cannot see, we cannot touch. Name of the things to whom we cannot see, we cannot even touch. उन तमाम चीज़ों के नाम जिनको हम लोग देख नहीं सकते, हम हाथ नहीं लगा सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. वी कैन जस्ट फील, राइट? दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल लव, हेट. फॉर एग्जाम्पल लव ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे वालिदैन की मोहब्बत, राइट? अब लव ऐसा नाउन है जो मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, हम फील करते हैं दैट समवन लव्स अस, राइट? इसी तरह से हेट नफ़रत है, एंगर गुस्सा, लाइक समवन इज़ विद एंगर, कोई गुस्से में है तो हमें गुस्सा नज़र नहीं आता, हम फील करते हैं कि किसी को गुस्सा आया हुआ है, एक्सप्रेशन है ये, राइट? तो एंगर इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरह से करेज का वर्ड है हौसला, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. केयर, एयर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग फील करते हैं. वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट इवन टच, राइट? कमिंग टू वर्ड कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? नेम ऑफ द, यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई तो आप लोग नोट कर लीजिए. नेम ऑफ द थिंग्स टू होम वी कैन सी, वी कैन टच. उन तमाम चीज़ों के नाम जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम हाथ लगा सकते हैं, इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. नेम ऑफ द थिंग्स टू होम वी कैन सी, वी कैन टच. फॉर एग्जाम्पल फादर. फादर, अब देखिए क्या ऐसा है कि हम फादर को जस्ट फील करते हैं कि ये फादर है? नो, ऐसा नहीं है. हम देख सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं. तो फादर इज अ कंक्रीट नाउन, राइट? इसी तरह से सन. अब सन जो है इट्स अ कंक्रीट नाउन. वी कैन सी, वी कैन टच. एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम लोग देख सकते हैं, हम हाथ लगा सकते हैं. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बॉल फॉर एग्जाम्पल, अब बॉल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट है? एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट की तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, नेम ऑफ द थिंग्स टू होम वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच. बट बॉल को हम देख भी सकते हैं, हम हाथ भी लगा सकते हैं, दैट एक्चुअली वी कैन प्ले विद इट, राइट?
तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है कंक्रीट नाउन में. द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड फादर को और सन को, और आपको ये कहना है कि कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है. तो डेफिनेटली ये कौन से नाउन है, कंक्रीट. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही डिसाइडेड द केस विद इक्विटी एंड जस्टिस. वो फैसला करते हैं, उन्होंने फैसला किया मामलात का इंसाफ और अदल के साथ. राइट. अब इक्विटी बराबरी करना, जस्टिस इंसाफ करना, ये ऐसे नाउन है जो, फॉर एग्जांपल जस्टिस है, अब इंसाफ करना. इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो हम फील करते हैं. राइट. हम देख नहीं सकते. इक्विटी है, जस्टिस है, ये तमाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, वी जस्ट फील. राइट. अच्छा, एक्सरसाइज ए देखिए नीचे. अब आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइंड वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. आपको कह रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस हमने आपको दिए हुए हैं, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं. आप उन वर्ड्स के बारे में बताएं, आइदर दे आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. ओके. नंबर 1, शी पुट्स मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज. एफर्ट, कोशिश. एफर्ट का वर्ड देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ये मैं इसको जूम कर रही हूँ, ये देखिए एफर्ट का वर्ड देखिए अंडरलाइन किया हुआ है. एफर्ट, कोशिश. अब कोशिश ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इंसान कोशिश करता है. हम देख नहीं सकते किसी की कोशिश को. राइट. हम जस्ट फील करते हैं. तो एफर्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरह से स्टडीज़, मुतालिया करना, डेफिनेटली इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दोनों ही इसमें एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है, आप लोग इस पे ए लिख लीजिए. सेकेंड वन इज दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस. जस्टिस, अभी हमने जस्टिस को ऊपर भी डिस्कस किया कि जस्टिस कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसी तरह से ट्रूथफुलनेस, सच्चाई. देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रूथफुलनेस, सच्चाई एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है. हम देखते नहीं है किसी की सच्चाई को कि आइदर द पर्सन इज स्पीकिंग ट्रूथ और ही इज टेलिंग अ लाई. राइट. बट हम फील करते हैं. ट्रूथ एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आता. राइट. तो वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द थर्ड वन, ये बोर्ड में भी आया हुआ है काफ़ी दफ़ा आपके. कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट. ओके, बॉल्स. बॉल्स कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है. ऑफ कोर्स बॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं. वी कैन एक्चुअली प्ले विद इट. तो बॉल इज कंक्रीट नाउन. बास्केट, बास्केट इज ऑल्सो कंक्रीट बिकॉज वी कैन सी, वी कैन टच. बोथ आर कंक्रीट नाउन. ओके. नंबर 4, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर. ताजिर, बददियानतदार ताजिर. बददियानतदार ताजिर. अब ट्रेडर ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जिसको हम देख सकते. ताजिर एक शख्स को कहते हैं ना, ताजिर. राइट. तजारत करने वाला. तो डेफिनेटली एक पर्सन है, एक शख्स है, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको हाथ लगा सकते हैं. तो हाउ इट कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दिस इज कंक्रीट नाउन. ट्रेडर इज कंक्रीट नाउन. इसी तरह से अगर आप आगे आ जाए, ट्रस्ट, यकीन. राइट. भरोसा जिसको हम बोलते हैं. तो ट्रस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम फील करते हैं. ट्रस्ट जो है फीलिंग्स हैं, ये हम देख नहीं सकते ट्रस्ट को, या हम हाथ नहीं लगा सकते. इट्स नॉट लाइक समथिंग कंक्रीट. तो दैट्स वाई ट्रस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कस्टमर्स, ग्राहक. Customer is of course a concrete noun because we can see customers, we can touch, we can talk customers, right? Number 5 and perhaps the last one. He did not take good care of his pet. Care, एहतियात करना. एहतियात ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, हम हाथ नहीं लगा सकते, हम फील करते हैं कि समवन इज़ केयरफुल अबाउट अस और नॉट. राइट. केयर इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरह से अगर हम पेट की बात करते हैं, पेट बोलते हैं पालतू जानवर को, पालतू परिंदा या जानवर वट एवर.
तो पेट देखिए जानवर है या परिंदा है, जो भी है आपके पेट में, तो डेफिनेटली यू कैन टच, यू कैन सी। ऐसा तो नहीं है कि हम फील करते हैं ये देखें पेट है, पेट है। नो, इट्स नॉट लाइक समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो पेट इज कंक्रीट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू वर्ड एक्सरसाइज बी, choose whether each sentence needs an indefinite article or definite article or no article. Okay. इस एक्सरसाइज में एक्चुअली आर्टिकल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ जुमले दिए हुए हैं और ब्लैंक्स हैं वो, और आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसमें आर्टिकल फिट इन करें। आइदर दे विल कम इनडेफिनेट और डेफिनेट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल की कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी है। दैट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो रिलेटेड टू आर्टिकल्स, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। बट मैं इसको थोड़ा सा अभी डिफाइन कर देती हूँ कि आर्टिकल क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ए एंड एन, राइट? इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एन और दूसरा वर्ड है ए, राइट? और डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज द। ओके। अच्छा, सबसे पहली बात कि ए और एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाउन से पहले। नाउन से पहले हम लोग यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। और अगर तो कॉमनली हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज़, किसी भी नाउन के बारे में जनरली बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक नाउन को डिस्कस नहीं किया जा। अगर जनरली किसी भी नाउन के बारे में डिस्कशन की जा रही है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में नाउन से पहले क्या यूज़ किया जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल ए आ जाता है या एन आ जाता है। अब बात रही ए कब आता है, एन कब आता है। अगर तो आपका नाउन स्टार्ट हो रहा है किसी वाउल लेटर से, फॉर एग्जाम्पल वाउल्स में हमारे पास क्या वर्ड होते हैं, क्या कौन से लेटर होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई भी लेटर आपके नाउन के स्टार्ट पे आ जाता है तो आप यूज़ करते हैं एन, राइट? फॉर एग्जाम्पल एग, एग किससे स्टार्ट होता है? ई से, राइट? तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे एन एग, राइट? इसी तरह से एप्पल, एन एप्पल। क्यों हमने एन यूज़ किया? क्योंकि एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंक, राइट? इंक पोर्ट, तो हम बात करेंगे एन इंक पोर्ट, राइट? तो अगर वाउल्स के अलावा कोई भी नाउन है, वाउल्स के अलावा कोई भी लेटर आ जाता है नाउन के स्टार्ट पर, तो हम एन यूज़ नहीं करते, हम बल्कि क्या यूज़ करेंगे? आ। हम आ का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, अ कैट, मंकी, अ मंकी, बुक, आ बुक, राइट? वाइल अदर साइड पे अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन, तो हम कहेंगे एन एरोप्लेन, राइट? वाइल अगर हम वाउल्स के अलावा किसी भी लेटर को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बॉय, आ बॉय, चाइल्ड, आ चाइल्ड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल। और अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक ही वर्ड आता है हमारे पास, एंड दैट इज द, राइट? THE, द। ओके, ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि दा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्पेसिफिक चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जब हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने कहा बुक, राइट? अब अगर हम किसी भी जनरली बुक की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे आ बुक, राइट? तो अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे द बुक, राइट? इसके मज़ीद डिटेल के लिए आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आर्टिकल को कंप्लीट डिस्क्राइब करूँगी, कंप्लीट डिटेल वीडियो एक्चुअली वो होगी, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, राइट? कमिंग टू वर्ड इट्स एक्सरसाइज, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे पूछा बहुत मुश्किल सवाल। ही आस्क्ड मी a very hard question, उसने मुझसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछा, राइट? a very hard question। सेकंड देखिए,
Dash question that he has asked me was easy. The question, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात की जा रही है कि वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा था बहुत आसान था, तो हम लोग यहाँ पे आ या एन का वर्ड तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते. द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, राइट. हैव यू सीन माई स्कार्फ? नो आर्टिकल. यहाँ पे ना तो आ आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही दा आएगा. यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. अब ये क्यों ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा. तो इतनी डिटेल जानने के लिए आप लोग प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, राइट. अभी मैं सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करा रही हूँ. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है पहले मैंने आपको, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए आर्टिकल क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा. बट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग वीडियो देखिएगा, राइट. Number 4, could you please pass me the salt? Could you please pass me the salt? अब the salt क्यों लगा दिया हम लोगों ने? बिकॉज salt है ना, एक स्पेसिफिक चीज़ है, नमक की बात की जा रही है, तो हम लोग डेफिनेटली ऐसी कोई भी चीज़ आएगी तो हम दा का वर्ड यूज़ करते हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता. Could you please pass me a salt या an salt? No, absolutely wrong. Could you please pass me the salt? नंबर 5, अच्छा ये बहुत केयरफुली देखिएगा. अगर आपको ये दोनों सेंटेंसेस समझ आ जाते हैं तो फिर आई थिंक आपको आर्टिकल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ओके, नंबर 5 देखिए. इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर? ओके, नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट. आ का वर्ड यूज़ किया जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर? क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है. क्या आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, राइट. देखिए, किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट को तो नहीं डिस्कस किया गया, किसी खास रेस्टोरेंट का नाम लेके तो नहीं पूछा गया कि वो रेस्टोरेंट यहाँ पे है. कोई भी जनरली बात की जा रही है कि क्या कोई ख़ास रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या जनरली डिस्कस किया जा रहा है, जनरली क्वेश्चन किया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पे? आ. इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर? ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड. वो रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त ने ऑन किया, ख़रीद लिया, बहुत अच्छा है. ओके स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे हम किसी भी जनरली रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? नो, यहाँ पे हम एक ख़ास रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त ने लिया है बहुत अच्छा है, राइट. द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड. ओके, नंबर 7, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स. मेरे कई अच्छे दोस्त हैं. नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हेयर, राइट. ओके, नंबर 8 पे देखिए. यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. द यूएई, हमने कहा स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, स्पेसिफिक नाउन के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? द. तो यूएई जो है इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री ना, तो हम लोग कंट्री के नेम को जनरल कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग उसको स्पेसिफिक कंसीडर करते हैं. दैट्स वाई यूएई के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? द यूएई इज़, द यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. आई विल सी यू इन अ वीक. एक हफ्ते में मैं मिलूँगी आपसे या मैं देखूँगी आपको. I will see you in a week. In a week. The last one. I am on vacation until Monday. No article is required. I am on vacation until Monday. Right. So this is all about article. I hope it is clear. It must be clear actually to all of you. बट अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो इन विच आर्टिकल विल बी डिस्क्राइब्ड, विल बी एक्सप्लेन टू यू गाइस, राइट. ओके, कमिंग टू वर्ड एक्सरसाइज सी. अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको जुमले दिए गए हैं, आपने इनमें से, इन सेंटेंसेस में से अंडरलाइन करना है नाउन फ्रेजेस को फाइंड आउट करके. ओके, ठीक है.
ये क्वेश्चन तो आपको इस तरह पूछा जा रहा है ना बुक में कि आप इसमें से अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन पेपर में आपको ये क्वेश्चन हर किस इस तरह से नहीं आएगा। पेपर में स्टूडेंट्स आपको पहले से ही अंडरलाइन करके देंगे वो नाउन फ्रेजेस को, और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि आप हमें ये बताएं अंडरलाइन फ्रेज इज़ व्हाट। क्या ये नाउन फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रेपोजिशन है, राइट। सो आपको अंडरलाइन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये फ्रेज की कौन सी टाइप है। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज क्या होता है? देखिए, फ्रेज के बारे में जो डेफिनेशन हम लोगों ने हमेशा से पढ़ी है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे हमें बात समझ आ जाती है लेकिन पूरी बात समझ नहीं आती, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज, राइट। और अगर हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की, तो हम कहते हैं कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब नाउन टू सम एक्सटेंट, राइट। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो जुमले में नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है और उस नाउन को किसी हद तक एक्सप्लेन भी कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज, राइट। बट बिल्कुल ही मैंने आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है नाउन फ्रेज का। इसकी डिटेल वीडियो आएगी आगे ग्रामेटिकल पार्ट में विद इन अ वीक और 2 परहैप्स, तो आप लोग वो ज़रूर देखेंगे और उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअली नाउन फ्रेज होता क्या है, राइट। ओके, एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। नंबर 1, दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। ऑल राइट, आप सबसे पहले इसमें नाउन फाइंड आउट करिए, नाउन कहाँ पे है, हैट है इसमें नाउन। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, ऐसे भी जुमला कंप्लीट हो सकता था कि दिस इज अ हैट, ये एक हैट है, राइट। तो हम वहाँ पे कंसीडर कर सकते थे कि जो हैट है वो डेफिनेटली नाउन है। ओके, बट सेंटेंस किस तरह से दिया गया है, दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, कि ये पुराने तर्ज की टोपी है, पुराने तर्ज का हैट है ये, राइट। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या है, एन ओल्ड फैशन्ड हैट, इसको अंडरलाइन कीजिए, एन ओल्ड फैशन्ड हैट। नंबर 2, we discovered Fahad's plan. Please underline Fahad's plan. Fahad's plan is noun phrase. Fahad's plan. Number 3, a rolling stone gathers no moss. A rolling stone is noun phrase. Please underline a rolling stone. Number 4, the recent flood caused heavy damage. Okay, we can find 2 noun phrases in this sentence. Number 1 is the recent flood. Underline the recent flood. And the second here is heavy damage. Heavy damage is also noun phrase. Coming toward the last one, an oral presentation can be interesting. An oral presentation can be interesting. Please underline an oral presentation. This is a noun phrase. But again, I'm telling you guys, don't forget to watch the video related to phrases in which all types of phrases will be explained in detail. Okay, students, coming toward exercise D. This is the last one, I think, of chapter number 1. Last exercise of chapter number 1. Past indefinite and past continuous tenses. Fill in each blank with past indefinite or past continuous tense of the verb in brackets. All right. अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको बताया जा रहा है कि हमने आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे वर्ब्स पुट इन करें और बी केयरफुल कि पास्ट इंडेफिनिट को आपने फॉलो करना है और पास्ट कंटिन्यूस को। बिल्कुल ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट इंडेफिनिट में आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट, second form of the verb and object, right.
इफ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है सेंटेंस तो डेफिनेटली हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज करते हैं. डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तो बिल्कुल ही आसान बात है. हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है. वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसा नहीं है कि मैं आपको टेंसेस बस इसी तरह से बता दूंगी कि ये फार्मूलाज है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट इंडेफिनिट. नो, डेफिनेटली इसकी डिटेल्ड जो वीडियोस हैं विल बी अपलोडेड सून. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोज रिलेटेड टू टेंसेस इन विच यू विल बी एबल टू गेट more and more information. Those videos will give you information in detail related to tenses. Okay? Number 1, इसको जल्दी जल्दी से हम सॉल्व आउट कर लेते हैं बिकॉज वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है, तो इसको जल्दी से सॉल्व आउट कर लें जी. नंबर 1, व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट. व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट. क्या कर रहे थे आप जब मैंने आपको कल रात को कॉल की थी. व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट. कॉल्ड सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और फर्स्ट में आप वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे. व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट. राइट. नंबर 2, आई वॉज सिटिंग इन द कैफे. मैं कैफे में बैठी हुई थी व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल की. आई वॉज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी. I was sitting in the cafe when you called me. Number 3, when you arrived at the bus stand, who dashed there? When you arrived at the bus stand, who was there? When you arrived at the bus stand, who was there? Number 4, Shamsa dash watch a film when she heard the noise. Shamsa was watching a film when she heard the noise. Heard, heard. Shamsa was watching a film when she heard the noise. We dash play tennis when Javed hurt his ankle. We were playing tennis. We were playing tennis when Javed hurt his ankle. एक्चुअली हर्ट की सेकेंड फॉर्म भी हर्ट ही होती है और थर्ड भी हर्ट ही होती है. दैट्स वाई यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है हर्ट. वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल. ओके, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. So students, this is all about objective part of chapter number 1. I hope it's clear to all of you, but for detailed videos of these concepts, do not forget to watch my next videos. Because after viewing those videos, you will be able to get an understanding of the terms that have been used in this chapter in detail. So be with me and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.